Good morning, students. As we have studied yesterday about the new economic policies of India, when it was started, who started it, and what was the reasons behind this, what was the reason behind starting these new policies. I hope that you all have understand that, and if you are having any problem, you are free to ask. You can ask that to me. This chapter which I started yesterday, the third one, economic reforms 1991, since 1991, actually it's very important chapter because this one chapter contains the whole unit. Second unit is there, the full second unit is there in this only one chapter, and this chapter contains a very good measures, very good marks in the board examination. After clearing this chapter, you will be able to score 8 marks in board examination, and it's very good. One more thing, that this chapter is also very important because it shows, it can relate you with the present scenario of the economy, present scenario of the world economy, not only of the Indian economy. अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं, then it will be very easy for you to understand the change in the economy which is going on. इस समय के जो changes हो रहे हैं वो भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं. Then you can relate that all the changes with India. उन सब changes को हम इंडिया से जोड़ सकते हैं. This means कोरोना वायरस के इफेक्ट्स क्या हैं, what are the effects on the economy. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी में ये हो जाएगा, इकोनॉमी में वो हो जाएगा, बट इफ़ you are studying this chapter clearly, then I hope you will be able to understand, you will be able to relate all the economic variants with the present situation. If you understand, if you study it in a proper way, then it will be very easy for you. So let's start today's topic, components and elements of new economic policies, or components and elements of economic reforms. Most of the time, most of the students will get confused between components and elements. So components are different and elements are different. Both are the different in new economic policies. When we are talking about components of new economic policies or economic reforms, then there are two components or measures which are related to new economic policies or economic reforms. The first one is stabilization and second one is structural. Stabilization and structural, these both are the components. There are only two components, stabilization and structural. So what is stabilization measure? Stabilization measure contain are the short period time policies or measures. They are शॉर्ट पीरियड टाइम पॉलिसीज, छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए, थोड़े थोड़े टाइम के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, दे आर स्टेबलाइजेशन मेजर्स. वो स्टेबलाइजेशन मेजर में आते हैं. नेक्स्ट किस लिए बनाते हैं? फॉर करेक्टिंग डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी में जो डेफिसिट हो रहा है उस डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, करेक्ट करने के लिए. एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि बीओपी का डेफिसिट क्या होता है? बीओपी में डेफिसिट तब होता है व्हेन आर exports are less than our import. X are less than M. Exports are less than imports, or we can say when our imports are more than exports. The same thing is there. X is denoted by export and M by import. So stabilization measures are useful for correcting deficit in balance of payment. Next, stabilization measures also control the inflation. They also play a very important role. These policies, these measures, these components contains all that measures which are helpful for controlling the inflation. Inflation, as I told you yesterday, once again, inflation का मतलब क्या होता है? Price rise. Price rise किसी भी commodity. मीन्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी की, तो पूरी इकोनॉमी का मतलब पूरी इकोनॉमी में जो प्राइस राइज होता है, ये कैसे समझते हैं? प्राइस राइज क्लास 11th में स्टेटिस्टिक्स का लास्ट चैप्टर हुआ था एक, दैट वाज
प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स नंबर, इन दैट हमने पढ़ा था होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर या जनरल प्राइस इंडेक्स था, उनके बेसिस पर वी कैन ईजिली मेजर व्हाट आर द चेंजेस इन प्राइस। बेस ईयर और करंट ईयर के बेसिस पर प्राइस में चेंजेस को फाइंड किया था, एंड उन्हीं के बेसिस पर ये पता चलता है कि इन्फ्लेशन कितना है। तो इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है मीन्स प्राइस राइज ज़्यादा हो रहा है, तो दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्टेबलाइजेशन मीजर। स्टेबलाइजर होते हैं घरों में, क्या करते हैं जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं उसको कम कर देते हैं, या वहाँ पर कट लग जाता है, कट की सिचुएशन ना आए। पावर कट की सिचुएशन का मतलब है लाइक इफ देयर इज अ कट इन पावर देन देयर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर विल बी डार्क इन योर हाउस, आपके घर में अंधेरा हो जाएगा। बट इफ इट हैपेंस इन द इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में पावर कट हो गया मीन्स इकोनॉमी में कट हो गया, इट मीन्स इकोनॉमी विल स्टॉप वर्किंग, एंड इन दैट केस it will be very difficult for the government, for others to start it again. It will be very problematic. So for that they avoid a cut. For that what they use stabilization measures. Stabilization measures means ये छोटे छोटे टाइम के लिए बनाए जाते हैं कि हम थोड़े थोड़े टाइम के लिए हम इनमें चेंजेस करते रहें, इसलिए। और इसको क्या कहता है, बीओपी के डेफिसिट को कम करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन इकोनॉमी में ना हो जाए। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर। ये तो स्टेबलाइज कर लिया हमने, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अचानक से बहुत ज़्यादा ना हो जाए उनको हमने कंट्रोल कर लिया। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या किए जाते हैं, क्या किए गए। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर एक दिन में प्रिपेयर नहीं होता, शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर नहीं होता। फॉर स्ट्रक्चर वी नीड मोर टाइम, तो फॉर मीन्स इट इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड टाइम मेजर्स, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ये ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए। नेक्स्ट, वाई इट इज़ यूज, इट यूज टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की इफिशियंसी मीन्स कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए सम मेजर्स आर टेकन, एंड दैट मेजर्स आर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। ये सारे मेजर्स लिए गए कि किस तरीके से हम इकोनॉमी की इफिशियंसी को इम्प्रूव करेंगे। कैसे कर सकते हैं, बाय इम्प्रूविंग दैट कैपिटल इंडस्ट्री, बाय इम्प्रूविंग आर दैट इकोनॉमिक फैसिलिटीज, by improving the communication, by improving road facility, by improving transportation. So many things are there by which we can improve the efficiency of the economy, से हमारी work capacity बढ़ सके। Okay, next is increasing international competitiveness. When our efficiency increase, जब हमारी efficiency बढ़ गई, work करने की capacity बढ़ गई, तो in that case we can increase इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस। हमारा जो इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस है, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा जो कम्पिटिशन है, दैट कैन बी इंक्रीज, वो इंक्रीज किया जा सकता था। सो दीज आर बेसिकली टू स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल मेजर आर द कंपोनेंट्स of economic reform since 1991, or we can say that these are the components of new economic policies of India. ये components थे इंडिया की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई, उन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में फोकस किया गया इन दो तरीकों को, दो तरीके इस्तेमाल किए गए। मीन्स कंपोनेंट्स मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दो तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट कि उनको स्टेबलाइज किया गया, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम हमारी जो बेसिकली दो प्रॉब्लम्स थे हमारे पास, एक बीओपी का डेफिसिट एंड सेकेंड वॉज इन्फ्लेशन। इन दोनों प्रॉब्लम्स को स्टेबलाइज किया गया, यानी कि कम करने की कोशिश की गई, ये हमारे कंट्रोल में रहे, ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, हमारे कंट्रोल में रहे, इकोनॉमी के कंट्रोल में रहे, वी कैन इजीली कंट्रोल इट। एक तरफ इसको कंट्रोल करने के लिए प्लान किया गया। सेकेंड साइड में ये कोशिश की गई कि हम अपनी इफिशियंसी को बढ़ाएं, और इफिशियंसी को बढ़ाने के साथ साथ इंटरनेशनल कंपटीशन को बढ़ाया जाए। इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ाना जरूरी इसलिए था क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ने की वजह से ही हमारी कंट्री में जो जितनी भी यूनिट्स थी, प्रोडक्शन यूनिट्स, दे ट्राइड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, क्योंकि उनका कंपटीशन लोकल लेवल पर नहीं था, क्योंकि लोकल लेवल पर देयर मे बी मोनोपोली, वहाँ पर हो सकता है मोनोपोली रही हो बहुत सारी चीज़ों में, बट इंटरनेशनल लेवल पर दे ट्राइड टू इम्प्रूव। जब उनका कंपटीशन हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, देन दे ट्राइड ओनली टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ देयर प्रोडक्शन
and then they start the quality, improving the quality, and in that way they got better when they got better result in that. Okay, that's all for this video, and in the next we'll start the elements of the new economic policies. Thank you.